Moving further, I invite Engineer Ravi Ranade to talk about the facts and myths about structural audit and NDT, who has come all the way from Pune, might I add. Engineer Ravi Ranade is a founder of the Construction Diagnostic Center Private Limited. He was appointed as a consultant by International Atomic Energy Agency, Vienna, Austria. He is nominated as a panel member for revision of Indian standards on the test methods for concrete, NDT. He is proud recipient of the prestigious Sir Vishweshwaraya Sanitary Award 2000. I request Engineer Paresh Unnarkar to please felicitate Engineer Ravi Ranade. Thank you, sir. The platform is all yours. Can you hear me? Okay. Good afternoon. थोड़ा सा slightly कम करें. I'm going to discuss on two different topics. First part, I'll be covering some facts and myths related to structural audit, and then followed by some again facts and myths related to non-destructive testing. Many times when we talk of this word, a generic word called as structural audit, I have noticed that the end user or the owner or the person, they are not clear what exactly they really want and what exactly the auditor is going to do at field. So some of these terminologies I see that they are very commonly used. The common is structural audit. Many times I call that when we say structural audit, if you open the dictionary meaning of audit, when you carry out an audit, it has to be done with some investigation. There has to be some cross-verifying or cross-checking of something. जब आप आपका accounts का audit करते हैं, then your CA is going to check your, say, vouchers, bills, books, and everything. And when we really do a structural audit, are we really going to check something? Most of the time what we do is a only visual observation, visual survey, and we call that as a structural audit. So legally it is not a structural audit. It's only a visual observation. So the better word what I can suggest is a structural condition survey instead of audit. So when you are doing only a visual survey, better we can say that is a structural audit. And if you are going to call that as a structural condition survey, and if you are going to do some investigation, maybe cross-verification of your architectural drawings, structural drawings, foundations, geological investigation, plus the actual testing of your structure along with NDT, establishing the strength of concrete. If all these are going to be associated with structural condition survey, then maybe we can call that as a structural audit. And very commonly, if you go to any government departments, they will ask you, not ask you, they will force you to give a structural stability certification for your building or structure. So, as we know that as per Factory Inspector Act, all the factory buildings, they are supposed to be certified for a stability after every 5 years. That means I have to say that building is not going to fail. It's going to stand for next 5 years. So I have to give a structural stability of that building. Again, I will come to that point. Can we really give a structural stability? If you ask me, the answer is 100% no. What we can say is give a only structural fitness report. Nothing more than that. We cannot certify a stability of a building. Maybe if a structure is new, the person who has designed that building, maybe all we structural engineers, if I have designed that building, if maybe I have consulted a geotechnical expert
and he has designed the foundations. I have witnessed those foundations, what has been done, and whether to witness each and every foundation or just to have a sample check, that again becomes a very gray area. Then I am going to say that I have witnessed the construction of that entire new building. Do we really witness or do we really supervise as a structural consultant the entire construction of building? Impossible. Maybe you are going to do some sample checking. And most of the time हम slab checking के लिए जाते हैं. But I hardly see that any structural consultant goes for checking for each and every column. कभी नहीं. कॉलम छोड़ दिया जाता है कि वो साइड इंजीनियर देख लेगा. And slab, which is a tertiary element, which is a secondary element in structural system, to be frank, that is not having a much of importance. उसको हम शादी जैसा इंपॉर्टेंस देते हैं. उसकी 15 दिन से पूरी तैयारी चलती है कि पूरा आपको स्लैब देखना है, उसको फड़ाना के बोला, उसको बोला, उसका स्टील वाला हो गया क्या, स्टटिंग वाला हो गया क्या, इलेक्ट्रिकल वाला हो गया क्या. अरे लेकिन कॉलम कास्टिंग के टाइम कोई नहीं. वो वॉचमैन को हम बोल देते हैं आज भर दो 2 कॉलम. सो ही इज फिलिंग दोज कॉलम्स, ही इज सुपरवाइजिंग. How can we certify when I have not seen the construction of that column? When I am not sure about what is the grade of concrete which has been poured in that concrete column. And most of the time, आपके ये जब से स्लैब है उसके लिए सब ये शादी की तैयारी रहती है ना, सो इसी टाइम आपका सब RMC कंसल्टेंट आएगा, मिक्स डिजाइन आएगा. And what about column? Hardly any time we see that a mixed design has been given for a column. और उसमें जो कंक्रीट पोर किया जाता है, ऑलवेज दैट कंक्रीट आई कॉल एज ए सांबार कंक्रीट. स्लैब के लिए या उसमें जब क्यूब कास्ट किए जाते हैं उसमें भी ऑलवेज देयर इज ए ग्राउंड रियलिटी कि जो क्यूब कास्ट किए जाते हैं उसको सुबह में एक अलग से बैच कास्ट की जाती है. दिस इज ए ओपन सीक्रेट. और सबको मालूम है कि सुबह जब कंक्रीटिंग चालू हो जाता है तब उसके लिए एक अलग से बैच कास्ट की जाती है जिसमें मिक्स डिजाइंस के हिसाब से यू विल फाइंड दैट एवरीथिंग एज पर मिक्स डिजाइन. नॉट इवन दैट, व्हेन यू आर गोइंग टू फिल अप द क्यूब ही विल ऐड सम मोर सीमेंट इन दैट क्यूब. ही विल सी दैट द क्यूब इज नॉट गोइंग टू फिल. एंड व्हेन दिस नौटंकी इज डन ऑफ क्यूब फिलिंग, फिर ऊपर से वो मुकादम बोलता है हाँ चालू करो अभी सांबार कंक्रीट. पूरे दिन भर सांबार कंक्रीट with lot of huge of water cement ratio. I have not seen a single site anywhere कि जहाँ ये सांबार कंक्रीट वाला जाए उसका किसी ने क्यूब भरा है और उसका किसी ने टेस्टिंग किया है. उसके रिजल्ट्स we don't have any results with us. We simply believe a cube which is a fakely casted cube, a specific batch सुबह कास्ट की जाती है, बाद में दिन भर कभी भी उसके क्यूब नहीं भरे जाते जिसमें सांबार कंक्रीट है. What is the myth of pumpable concrete? We say that pumpable concrete, the slump has to be say 150 to 180. But what we see really at site, when I say a slump of 150 to 180, that means when the concrete is going to come out of the pipe, it should have a hip in front of pipe. And that concrete should have 150 to 180 and I should be able to move that concrete with speed. That is pumpable concrete 150, 180. ग्राउंड रियलिटी, आपका यहाँ से पंप से कंक्रीट निकलता है 20-30 फीट तक, वहाँ तक पूरा भर जाता है. दैट इज माई पंपेबल कंक्रीट. एंड स्टिल मेरे क्यूब्स पास होते हैं. इम्पॉसिबल. अगर ये जो कंक्रीट इतना बह के 10, 15, 20 फीट तक दूर जा रहा है और उसके क्यूब पास हो रहे हैं, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है. सांबार कंक्रीट के कभी नहीं होते क्यूब, भरे ही नहीं जाते तो पास होने की क्या है. So certifying a stability of a new building is also a big challenge. Because most of the things I have not really checked. Do we really check the column centers post concreting? Do we check the post concreting plums of the buildings? We never. But when we are doing the audit, and we have done thousands of audits of buildings, and our experience, what we have gathered, is terrible.
I'm going to share you some of the slides. I know the time constraint is very small, 20 minutes for this, 20 minutes for NDT. Okay, then another terminology which is very commonly used is residual life assessment. ये जब residual life assessment terminology, I don't know from where this terminology has come in market. When people ask me that residual life assessment survey करके चाहिए, तो मैं उनको एक 2 लाइन का लेटर लिखता हूँ. Okay, if I had to find out a residue, first give me in writing what is the life of building. What is the original life of building? How you have calculated? Which is the formula which you have used? And is there formula कि left hand side पे आप डाल दो 60 years, solve the equations on right hand side, you get the columns and beam sizes. Change that 60 years to 150 years, then your column beam sizes, they will change. Till date, I have not seen any such equation, any theory, any of the books anywhere in worldwide. So when I say आप मुझे बोल रहे हो कि उसके ऊपर का इंटरेस्ट निकालना है, आप प्रिंसिपल तो बता दो. आप मुझे रेसिड्यू निकालने के लिए बोल रहे हो, तो आप मुझे बिल्डिंग का ओरिजिनल लाइफ बता दो कि यह आपका 75 इयर्स 6 महीने 5 दिन और 4 सेकंड का है. And give me the formula how you are arrived at that life. Then I will substitute. एंड अभी मैं बता दूंगा कि अभी 5 साल 4 दिन 2 महीना और 15 सेकंड रहने वाला है. इट्स मीनिंगलेस. द रेसिडुअल लाइफ असेसमेंट टर्मिनोलॉजी हैज गॉट नो मीनिंग, जीरो मीनिंग. यू कैनॉट कैलकुलेट द रेसिड्यू. आपको पता ही नहीं है ओरिजिनल बिल्डिंग की लाइफ क्या है, तो आप रेसिड्यू किससे निकाले हुए? देन देर आर सो कॉल्ड सम सॉफ्टवेयर like Life 365 or there are few other 4-5 softwares wherein they assume that person is going to have only one disease and that is going to be only a cancer, and that cancer is only of lungs, and each and every person world over he dies only with a cancer and that of lung cancer. That is the assumption what we make in all these residual life assessment softwares like Life 360 or any other softwares. And 90% of the softwares which are available, so-called, which give the residual life assessment, they presume that structure is going to collapse only because of corrosion issue. And out of that 90%, 85% of the software, they presume कि आपका जो corrosion है, that is going to be because of only a chloride-induced corrosion. So that means building is going to have only one disease, and that is corrosion, and that is only because of chlorides. And all your formulation and everything is based on that. And from give some theoretical inputs, and then you calculate the residual life assessment. If you ask me, बकवास है, कुछ मीनिंग नहीं है. अगर किसी को सेटिस्फाई करने के लिए इतने एक पन्ने का रिपोर्ट आपको भेजना है कि मैंने रेसिडुअल लाइफ असेसमेंट किया है, कुछ नहीं है उसमें से. बिकॉज बिल्डिंग इज नॉट गोइंग टू हैव ओनली दिस वन डिसीज. इट कैन डाई बिकॉज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ रीजन्स एंड मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल दिस डिसीजेस, नॉट ए सिंगल डिसीज. सो रेसिडुअल लाइफ असेसमेंट, इफ यू आस्क मी, इट्स इम्पॉसिबल. इट कैनॉट बी. पीएचडी करने के लिए उसमें कुछ आपको करना है तो ठीक है, दैट्स ए गुड सब्जेक्ट. You can get a PhD in that field. Ground reality में उसका use is zero. Then structural health monitoring. Many times I see that people get confused with the structural audit and structural health monitoring. When we do NDT, it's not a health monitoring. That is at present उस time का जो strength है या whatever condition है, that we are measuring. We are not measuring with respect to time. So if you measure with respect to time, then yes, maybe we can call that as a structural health monitoring. So as I see that there is a lot of confusion in field कि हमको क्या चाहिए, वो पता ही नहीं है. एक टेंडर फ्लोट कर दिया जाता है, स्ट्रक्चरल ऑडिट करो, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी लिख दो, रेसिडुअल लाइफ असेसमेंट कर दो. जिसको करना है उसको भी पता नहीं है, जो कर रहा है उसको भी पता नहीं है. As I said that, can anyone really sign a structural stability certificate? I am saying structural stability certificate. That means I have to give in writing that this particular building is going to stand for 5 years.
That is as good as asking a doctor to give a certificate that Ravi Ranade is going to live for next 5 years. Is it possible? Impossible. डॉक्टर छोड़ो, मेरे माता पिता भी नहीं बोल सकते कि मैं 5 साल रहूँगा. 5 साल छोड़ो, इधर से 2 मिनट के बाद में जिंदा रहने वाला वो भी किसी को पता नहीं है. So many times when people ask us that give a structural stability certification, I said first go to your doctor, bring a certificate that you are going to live for next 5 years. अगर वो लिख के दे सकता है, then I will sign on that document that a building can stand for 5 years. You must have seen the Diwar dialogue. Natural, right? Okay. I think some issue with the sound. But we know that this is a famous Diwar dialogue. शशि कपूर उसको पूछ रहा है कि भाई कब इसके ऊपर तुम साइन करोगे. एंड देन अमिताभ बच्चन बोलता है, जाओ पहले उस आदमी की साइन लेके आओ जिसने मेरे माँ को गाली थी. जाओ उसके आदमी की साइन लेके आओ जिसने मुझे ये किया था, मेरे हाथ पे लिख दिया था कि मेरे बाप चोर है. सो सेम थिंग इट हैपन्स इन रियलिटी. When somebody asks me to give a stability certification, मैं बोलता हूँ जा पहले उस स्ट्रक्चरल इंजीनियर की साइन लेके आओ जिसने वो बिल्डिंग डिज़ाइन की थी, जिसको मैंने देखा भी नहीं है. जाओ उस कॉन्ट्रैक्टर की साइन लेके आओ जिसने उसका कंस्ट्रक्शन किया था. जाओ उस बिल्डर की साइन लेके आओ जिसने उसको पूरा सुपरविजन किया था. जाओ उस जियो टेक्निकल कंसल्टेंट की साइन लेके आओ जिसने उसका डिज़ाइन किया था. नो वन इज इन पिक्चर. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट माई स्ट्रक्चर. 30-35 साल का जिसका मैंने कुछ देखा भी नहीं है, मैं पुणे में आके जा रहा हूँ और मुंबई में का एक बिल्डिंग मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ सिंपली लुकिंग एट दैट बिल्डिंग. आई डोंट नो व्हाट रियलिटी इज. सो दैट इज एज रिस्की एज दैट. एंड देन आई विल शो यू सम ऑफ द फोटोज. आई नो टाइम इज वेरी शॉर्ट. इन नेक्स्ट 5-10 minutes आई विल कवर द ऑडिट पार्ट. व्हाट रियली वी रिक्वायर फॉर ऑडिटिंग? वी रिक्वायर एज बिल्ड ड्राइंग. इंडिया में एज बिल्ड ड्राइंग बनते हैं? I have never seen. As drawing इंडिया में ड्राइंग अगर बनते हैं तो कैसे बनते हैं? जो ओरिजिनल ड्राइंग है उसके ऊपर एक 20 रुपए का स्टैंप लेके हम उसको प्रेस करते हैं एज बिल्ट. उसमें एक भी चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होता है इन सीटू. पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंडिया में कहाँ पे भी कॉलम के सेंटर चेक किए हैं या कॉलम के प्लम चेक किए हैं या प्लम्बर ने जो कॉलम को सिरेशन करके उसमें से पाइप अंदर डाला है उसका मेजरमेंट और रिकॉर्ड करके ड्राइंग में करेक्शन दिया है, आई हैव नॉट सीन. अगर किसी ने आपने देखा होगा तो मुझे बता दो, हम उसका सत्कार कर लेंगे राष्ट्रपति से. नहीं, राष्ट्रपति नहीं, मोदी जी के हाथ से लाल किले पे, कि ऐसा कोई एज बिल्ट रियली ड्राइंग बनता है. जो कंस्ट्रक्शन पे जो मिस्टेक्स हो रही है, जो फ्लॉज आ रहा है, वो ड्राइंग के ऊपर उल्टे रिपोर्ट हो रहे हैं और उसका डॉक्यूमेंटेशन बन रहा है. I have never seen as built drawing. फिर आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल ड्राइंग. स्ट्रक्चरल ड्राइंग आर्किटेक्चरल शायद मिल जाएंगे आपको, आरटीआई डालेंगे तो कॉर्पोरेशन आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग दे देगा. बट स्ट्रक्चरल ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, प्लम्बिंग ड्राइंग, मशीनरी लेआउट, ये आपको कभी पुराने बिल्डिंग का मिलता है? नथिंग. कुछ नहीं, अवेलेबल ही नहीं है. हैंडओवर ही नहीं होता है तो कौन देगा? आई हैव नेवर सीन दैट बिल्डर आपको सब उसका वो चांदी के इसमें आपको बटुए में डाल के आपको की भी देगा. लेकिन आई हैव नेवर सीन दैट ही इज हैंडिंग यू द ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर बिल्डिंग, कि वो उसमें आर्किटेक्चरल ड्राइंग दे रहा है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग दे रहा है, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग का लेआउट दे रहा है, जिसमें आपको अगर कुछ सोप डिश लगाना है तो आप वो ओपन करके देख रहे हो कि यहाँ पे मैं अभी स्क्रू करूँ क्या, इसके नीचे प्लम्बिंग का पाइप है क्या? नथिंग इज अवेलेबल. जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ये तो अभी हमने चालू किया है. 10 साल पहले हम स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स ही बोलते थे, मुरु में चलो 30 लगा दो बेरिंग कैपेसिटी, ब्लैक कॉटन साइल है 1, 10, 12 ले लो, रॉक लग रहा है, सॉफ्ट रॉक है, हाँ ठीक है 40-45 ले लो. तो अगर मैं 40 साल की पहले वाली बिल्डिंग कर रहा हूँ जिसका सॉइल इन्वेस्टिगेशन 100% नहीं हुआ है, हाउ कैन आई से दैट उसकी बेरिंग कैपेसिटी क्या है? फाउंडेशन, टाइप ऑफ स्ट्राटा, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन. When we do structural audit,
कभी हम फाउंडेशन एस्केवेट करके देखते हैं? वी सी सिंपली ए सुपर स्ट्रक्चर, वी नेवर सी फाउंडेशंस। तो फाउंडेशन का डेप्थ मालूम नहीं है मुझे, स्टार्टा मालूम नहीं है, ओपन फाउंडेशन है या पाइल्ड फाउंडेशन है मालूम नहीं, प्लिन बीम है या नहीं है वो भी मालूम नहीं है। हाउ कैन आई सर्टिफाई? रेनफोर्समेंट डिटेलिंग देख के पता चलता है कि ये उसको अर्थक्वेक का डिटेलिंग है, एल बार नीचे गया है और नीचे का बार भी ऊपर, वो तो अभी भी नहीं जाता है। टॉप का बार शायद नीचे आ जाएगा, लेकिन बॉटम का बार ऊपर गया है, ये अभी भी नहीं जाता है। तो ये बिना देख के आपको ये पता चलता है ये तो अभी सब क्लैडेड है, अभी यहाँ मुझे पता भी नहीं यहाँ कॉलम है भी नहीं है, शायद ये ऐसा कुछ नीचे आ रहा है तो शायद बीम हो सकता है, तो शायद वहाँ पे कॉलम। तो पूरी क्लैडेड बिल्डिंग है तो क्या मैं ऑडिट करने वाला हूँ? पूरा फॉल सीलिंग से ढका हुआ है, मुझे पता भी नहीं कि इसके ऊपर स्लैब है या कुछ ऐसी शीट रूफिंग है या ट्रस है, कुछ दिख नहीं रहा है। एंड आई एम गोइंग टू डू ए स्ट्रक्चरल ऑडिट। हिस्ट्री ऑफ चेंजेस, रिपेयर्स दैट इज रिक्वायर्ड, डिजाइन एंड प्रेजेंट लोड, क्वालिटी कंट्रोल चेक्स, जो आप कंस्ट्रक्शन किए उस टाइम के रिकॉर्ड्स आपके पास, रॉ मटेरियल हार्डन कंक्रीट के टेस्ट 30-40 साल पहले, दिस एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ए स्ट्रक्चरल ऑडिट एंड नथिंग इज अवेलेबल। शायद आपको मिल गया तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग मिलेगा, बाकी इसमें से एक भी डाटा आपको नहीं मिल रहा है। क्या ऑडिट कर रहे हैं हम? डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, डॉक्टर पूछ रहा है कि आपकी हिस्ट्री बता दो, आपके फादर और पिताजी की बता दो, और होम्योपैथी वाला है तो वो तो अपन पूछतों तक पूछते जाएगा, पिताजी के पिताजी के पिताजी उनको क्या होता है वो भी होम्योपैथी वाला पूछेगा। और इधर मुझे कुछ पता ही नहीं है वो बिल्डिंग को क्या चेंजेस हुए, किसने अल्ट्रेशंस किए हैं, क्या चेंजेस हुए, नथिंग, नो डाटा इज अवेलेबल एंड स्टिल वी कॉल दैट इज a structural audit. Design assumptions versus ground reality. Because as we are doing non-destructive testing, everywhere when we do non-destructive testing, I am required to open a plaster. अगर मुझे कॉलम का करना है, बीम का करना है तो मुझे प्लास्टर निकालना है। अगर मुझे स्लैब का करना है तो स्लैब का करना है तो मुझे ये ऊपर की फर्शी निकालनी है, नीचे से फॉल सीलिंग निकालना है, एंड आई हैव टू यूज ए डायरेक्ट मेथड फॉर अल्ट्रासोनिक, जो कभी नहीं होती है। इट हैज टू बी ए डायरेक्ट मेथड एनडीटी के लिए, अल्ट्रासोनिक के लिए फॉर स्लैब, बट 99% पीपल यूज indirect. Indirect method is not at all recommended for ultrasonic strength prediction. Indirect method is meant only and only for depth measurement, crack depth measurement. That's all, full stop. लेकिन हम ऐसे लगा के स्लैब टेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे फर्शी नहीं निकालनी है, मुझे सीलिंग नहीं निकालना है। आपको शॉर्टकट करना है, दैट इज नॉट मीन दैट यू आर सपोज टू डू ए इनडायरेक्ट मेथड. इट इज नॉट मेंट फॉर दैट. So you have to open it from top and bottom. So thousands of places we have opened these slabs, and this is what we have really found. This is our statistics. Internal plaster column के wall के ऊपर में भी 12 चाहिए, आपको 5-30 मिलेगा. Column के ऊपर भी 12 चाहिए. How much we find? 5 mm to 75 mm. I have hundreds of photographs with me where even the plaster thickness is more than 100 mm. 100 mm, hundreds and thousands of photographs with me. What does it implies? अगर आपके कॉलम के ऊपर का थिकनेस 50 mm, 75 mm, 100 mm प्लास्टर आ रहा है, that means plumb. Your building is not in plumb. Your columns not in plumb. ये इतने सारे पूरे बिल्डिंग हम खड़ी करते हैं 20, 30, 40 माले की. इंडिया में एक भी बिल्डिंग का प्लास्टर, एक्सटर्नल प्लास्टर प्लम में होता है? ऊपर 20 mm का ठिया लगाया और उस पर प्लंज छोड़ के नीचे का प्लास्टर किया है. इज दिस ए प्रैक्टिस इन इंडिया? एक्सटर्नल बिल्डिंग का आप मुझे एक बिल्डिंग दिखा दो कि जहां पे प्लास्टर प्लम में किया जाता है इंडिया में. कभी नहीं. क्यों? 100% मुझे मालूम है कि मैं प्लम छोड़ूंगा तो नीचे बिल्डिंग के अंदर जाएगा, नीचे बिल्डिंग के बाहर 4 इंच आने वाला है. दैट इज द ग्राउंड रियलिटी. क्यों? पोस्ट कॉन्क्रीटिंग
checks are totally missing in India. Post concreting हम building का plumb check ही नहीं करते हैं. And when we do structural audit and when we do NDT, we are doing all this investigation as a forensic consultant. And these are the reality we are finding out. External plaster, as I am saying, 100 mm plus minus. Ceiling का plaster कभी देखा नहीं है मैंने कि 25 mm 40 mm. मालूम है सिर के ऊपर गिर जाएगा, तो वो 15-10 mm बराबर रहता है. Flooring thickness in structural design we assume as 40 to 50 mm. ये फ्लोरिंग किसको पता है? ये देख के पता चलेगा कि इसका थिकनेस 40 है या 50 है. I have assumed as 1 kN per meter square load in my design, structural design. But how many times we really cross check? We cross check as a NDT consultant. And अभी तक मेरा जो statistics है, what we really find is 40 to 120 mm on an average floor thickness. और 50 के नीचे hardly 5% to 10%. And more than 75 mm, more than 50 to 70% cases. More than 75 mm to 100 mm. Very common, very common. And especially if the slabs are last man slabs, say 6 meter flat slabs, 7, 10, 8 meters, they have the deflections. Deflections अभी का बाद में चेक करते हैं? Never. We have done lot of checking of flat slab deflections. And we have observed the flat slab, they deflect of the tune of about 50 mm to 150 mm. Again, hundreds of cases with me that flat slabs have such a huge deflections. So your slab is already deflected by 50 mm. So आप यहाँ पे टाइल का माचन चालू करोगे 50 mm, सेंटर पे ऐसे थोड़ी फंसी डालोगे, यू विल हैव इट इन लेवल. सो यहाँ पे 50, यहाँ पे 50 mm plus deflection, 100 mm. What about my P delta effect? In my structural analysis, earthquake analysis, I am assuming that my slab is a rigid diaphragm slab which is exactly flat and that is transferring my force and there is no in-plane bending in that force of direction. That is my assumption. Then only my force is going to get transferred to my second column or frame. But your slab is already deflected, flat slab is already deflected by 50 mm to 75 mm. अगर ये slab already deflected है, if you apply horizontal force, simply it will fold. My assumption of a rigid floor diaphragm action itself is not valid. लेकिन ये structural engineer को ये कभी हमको पता ही नहीं चलता है because there is no cross checking after concreting. Waterproofing thickness हम assume करते हैं 100 to 150. Theoretically assumption है हमको कितने मिल रहे हैं when we open the roof slab for slab testing ultrasonic 100 to 300 very common. अभी recently last week मेरा एक project अभी चल रहा है जहाँ पे we have opened the roof slab and the thickness you will be shocked, it is 425 mm waterproofing thickness. Slab already deflected. The case was for non-destructive testing. And when we intimated this to the structural consultant, that flooring waterproofing thickness is 420. How much you assume? He said 150. 3 times the weight already existence. ये सब कहाँ ऑडिट में हमको पता चलने वाला है कि वाटरप्रूफिंग का थिकनेस कितना है, इसका फ्लोरिंग का कितना है, कॉलम प्लम में है या भी नहीं है? नेवर. दीज आर सम ऑफ द फोटोग्राफ्स वेरी कॉमन. यहाँ पे आपको दिख रहा है 110 mm, यहाँ पे दिख रहा है आपको 120 mm. assumption is 40-60 mm. This is one of the slab about 10 years back. This was one of the case which we handled as a forensic consultant. Balcony collapse, 3 years old structure, and after 3 years the balcony collapse. और उसके ऊपर 5 आदमी थे, पांचों के पांचों मर गए, उसमें से एक कुछ 4 साल की बच्ची थी. Whose mistake? अगर आप इसमें देखेंगे बालकनी का ये नीचे का स्लैब है,
theoretical thickness was 120, it was approximately 120. ये नीचे का सीलिंग प्लास्टर 5-8 mm ओके. इसके ऊपर बालकनी के ऊपर वाटरप्रूफिंग का जो थिकनेस है, दैट वाटरप्रूफिंग थिकनेस इज 140 mm. बालकनी के ऊपर क्या जरूरत है आपको 140 mm की? एक्चुअली व्हाई वी शुड हैव बालकनी इन संक? Simply have a chemical treatment that is sufficient, more than sufficient in balcony if it is exposed. इसके ऊपर ये मेरा फ्लोर टाइल बेडिंग है, 40-50 mm चाहिए था, जगह पे कितना है 95 mm. When we asked the structural consultant कि 140 plus 95 mm 235 mm का डेड वेट है स्लैब के ऊपर, for how much load he has designed, he said I was not intimated that there is going to be a sunk slab. I have not designed that as a sunk slab, so just forget this 140. The slab is not designed for that. And flooring weight I have considered as 1 kilonewton, that is 100 kg per meter square, that means 45 mm, so this is 2 times. Effectively, when we calculated, did the reverse analysis, we found that the stress in concrete was about 4.85 times the design strength. It has to collapse. It has to collapse. लेकिन ये कोलैप्स हुआ तब पता चला. कोलैप्स नहीं होता तो मैं इसका स्टेबिलिटी लिख के देता. दिस इज वेरी कॉमन. टैंक रखना है तो सिंटेक्स टैंक है तो उसको आपको प्लेटफॉर्म करना चाहिए. वो कितना 200, 300, 500 कुछ भी. ऑन एन एवरेज उसकी डेंसिटी के हिसाब से निकालेंगे. देन द वेट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, solid platform, is 500 to 600-700 kg per meter square. And roof slab we design it for accessible है तो 150, inaccessible है तो 75, और इसका ही वेट आपका 600 है. वन ऑफ द प्लेटफॉर्म ये इन्वर्टेड बीम किया था, उसके फॉलो हो रहा था 1200 mm का प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर 10,000 की टाकी. Then I called that structural consultant, have you designed that beam for that 10,000 liter tank plus that load? He said, forget, I am not being informed कि वो टाकी कहाँ रखने वाले. We are not aware. प्लम्बिंग के लिए ये तो खुला रेप है स्ट्रक्चर के ऊपर. आपको जहाँ चाहिए उसको ड्रिल करके प्लम्बिंग का पाइप लगा दो. आपको कंसील चाहिए तो कॉलम का पूरा प्लास्टर कवर कंक्रीट निकाल दो, उसमें प्लम्बिंग डाल दो, फिर उसके ऊपर आपकी टाइल आएगी, फिर उसके ऊपर आपका जगवार का फिटिंग आएगा. फिर ऑडिट के लिए जाने के टाइम आपको वो दिखाएगा, देखो मेरे फ्लैट में जगवार का फिटिंग लगाया है. अरे लेकिन अंदर कट किया है वो कहाँ दिखा रहा है, और वो किसको पता चल रहा है? खाली हम जाके देख के आते हैं ऑडिट में, अरे क्या टॉयलेट किया है उसने, लेकिन उसके पीछे जो कट हुए हैं आरसीसी मेंबर्स, वो हमको किसी को पता नहीं है. बाद में उसको सपोर्ट देके एडिशनल लोड डाल दिया स्ट्रक्चर का. ये तो कॉलम ISMB 400 है, ये खाली यहाँ ऊपर दिख रहा है, ये इधर नहीं, एक इधर से पाइप जाने वाला था इसलिए उधर से कट कर दिया. फिर मैंने बोला ये नहीं, उधर से ऐसा पाइप जाने वाला था, फिर उसको कट किया. मैंने बोला उसको रखा क्यों, वो भी निकाल दो ना. ये जब मैं ट्रस देखने के लिए गया था, दिस इज वन ऑफ द शुगर फैक्ट्री, 5 मिनट देखने के बाद मैं दंग रह गया. मैंने बोला क्या दिखा रहे हो? सर ट्रस है. मैंने बोला कहाँ है ट्रस? ये नीचे का बॉटम कॉर्ड यहाँ होना चाहिए था, पूरा निकाल दिया. यहाँ होना चाहिए था, पूरा निकाल दिया. ये डायगोनल यहाँ पाइप आ रहा है उसको कट किया, ये डायगोनल आ रही है इसको कट किया. फिर ये टॉप को इसको एक सपोर्ट दिया, इसको एक सपोर्ट दिया. एंड दिस इज हाउ इट्स स्टैंडिंग. दिस इज वेरी कॉमन. गो टू एनी ऑफ द नेशनल हाईवे ब्रिजेस. वी हैव टेस्टेड लॉट्स ऑफ नेशनल हाईवे ब्रिजेस. और जैसा कॉलेज में सिखाते हैं ना कि कैसा नहीं होना है, अगर वैसा कुछ दिखाना है तो कौन से भी नेशनल हाईवे के ऊपर, ब्रिज के ऊपर लेके जाओ और उसको दिखा दो कि आपको क्रैक्स, शेयर दिखाना है, फ्लेक्चर दिखाना है, सब जो थ्योरी में दिखना है वो आपको आराम से इधर दिख जाएगा. ऑल टाइप्स ऑफ क्रैक्स. स्ट्रक्चरल सेटलमेंट क्रैक्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. डिफरेंशियल सेटलमेंट, इक्वल सेटलमेंट.
This is one of the industrial sector. I am not naming. It's in Maharashtra. It's a filled up soil, reclaimed soil. About 2 मीटर का फिलिंग है. And the plots were sold. कि ये जो फिलिंग किया है that is with Japanese technology. कि 99 साल का जो फिलिंग है वो हमने 1 साल में किया है. The plots are sold. People have constructed the buildings. And within 6 months, the entire land in that area has gone down by half a meter. And these are the cases over there. ये स्टेप यहाँ था 6 महीने पहले. 6 महीने के बाद half a meter it has gone down. Corrosion, how extensively it can be. ये जो आपको दिख रहे हैं, these are not bars. These are the traces of bars. यहाँ होता था. जो दिख रहा है that is color. Scale है, कुछ नहीं रहा है. Same thing. ये जो आपको दिख रहा है बार नहीं है. It's a scale remaining. Originally drawing में 25 mm का बार था. Now what you see is nothing. ये पाइप सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है. कैन यू सी कागज भी उससे बेटर रहेगा. नथिंग रिमेनिंग. हाउ मच साल इसका 7 years. 7 साल में ये सिचुएशन है करोजन की. ऑडिट करते के समय जब हम जाते हैं तो ये ट्रस्ट जब तक आप ऊपर चढ़ के देखेंगे नहीं आपको क्या पता चलेगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स क्या होते हैं. दीज आर द वेरी कॉमन डिफेक्ट्स. ये नट इधर होना चाहिए था, ये इधर होना चाहिए था. 100 mm का स्पेसिंग है, एक नट नहीं बैठ रहा है. व्हाट डज इट मीन? कॉलम इज आउट ऑफ प्लम या कॉलम सेंटर इज शिफ्टेड बाय 100 mm. दैट इज वाई ये बोल्ट यहां पे नहीं बैठ रहा है उसका. एंड दिस इज वेरी कॉमन. आप ऊपर चढ़ के देखिए ट्रस के ऊपर बोल्ट आप लगा ही नहीं पा रहे हो. इसका मीनिंग है कि आपके कॉलम्स एंड दे आर नॉट इन सेंटर एंड दे आर नॉट इन प्लम. दिस इज अनदर फैक्ट्री. दिस इज वन ऑफ द वेरी मल्टीनेशनल फैक्ट्री. स्टॉलवर्ड consultant, project management consultants on this particular project. Can you see again? कितने सारे होल लगा के he is trying to fit that gantry girder. ये दोनों होल्स इधर चाहिए थे, वो उसको मिल भी नहीं रहे, उसके बाहर गए, फिर उसने उसको वेल्ड कर दिया. Forget the stability of beam. वो होल मिल क्यों नहीं रहे? When we cross verified again, the column centers were wrong by 150 mm. अभी एक मुंबई की केस मेरे पास है. आई एम सिंपली नेमिंग द नेम ऑफ सिटी. आई एम नॉट नेमिंग दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग. अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, कुछ 23 माले की बिल्डिंग है, 2 टावर्स है, उसमें से कुछ अभी 16 माले तक आ गए, कुछ 11 माले तक आ गए. अनफॉर्चुनेटली दैट बिल्डर इज इन बिहाइंड द बार्स एंड देन द इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड. देन वी केम इन पिक्चर एज ए एनडीटी कंसल्टेंट. Then we cross-verified the strength. As usual, the strength was terribly low. And then it went in court. और फिर उसमें एक justification चल रहा था कि you are talking of only concrete entity. What about the general quality? Then we said that then we need to check the column centers. फिर एक टोटल सर्वेयर को बुलाया और उसको बोला कि सब जो एग्जिस्टिंग है उसका टोटल स्टेशन सर्वे करके कॉलम्स के सेंटर्स दे दो with respect to ground floor. And he gave a report in both the towers that the column centers are varying by 50 mm to 230 mm. I was shocked. I said something wrong. तुम्हारा मशीन कुछ गलत लग रहा है मुझे. We appointed second total surveyor. Plus minus 5 mm figures were same. Again doubt. Again appointed a third total station surveyor. Again plus minus 10 to 15 mm and the final figures are 50 mm to 230 mm column centers are moving. And we are assuming 20 mm eccentricity for column design. कहाँ जाके हम चेक कर रहे हैं? ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर को डाटा आ ही नहीं रहा है फील्ड से. ब्लाइंडली हम ऑफिस में बैठ के अज्यूम कर रहे हैं कि हम जो बोलते हैं वैसा होता है साइट के ऊपर.
We are doing forensic investigation and I have lots of such cases. एक 15 साल पहले तक मैं भी लिख के दे रहा था structural stability. And when I started coming across odds such type of say deficiencies, I took a decision in one of the case. Okay, this is one of the water tank जिसका cover dome has collapsed. Age of structure water tank hardly 9 years. These are water reservoirs, corporation water reservoirs. नीचे से जो दिख रहा है, again Salia has gone. No steel. This is again one of the case. एक ऑडिट मैं कर रहा था और पहले गवर्नमेंट का बिल्डिंग और नीचे लोग बैठे हैं और ऊपर से स्लैब से मूलियाँ नीचे आ रही है. ऐसे डरे क्या है, वो बोले शायद ऐसा हो सकता है कि ऊपर कुछ मूलियाँ है. ऐसे डरे तुम्हारे मुंह के ऊपर ऐसे ऐसे हो रही है, कभी जाके देखा नहीं है ऊपर? बोले नहीं, उसको ताला लगा है और उसको खोलने का गवर्नमेंट का मेरे पास ऑर्डर नहीं है. आई डोंट हैव पावर टू ब्रेक दैट लॉक. 15 साल तक लॉक नहीं खोला था. व्हेन वी ओपन दैट लॉक और जब मैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर गया, दिस इज ए फोटोग्राफ ऑफ फर्स्ट फ्लोर, नॉट ए ग्राउंड फ्लोर, नॉट ए जंगल. ये फर्स्ट फ्लोर का स्लैब है, ये स्लैब के ऊपर का फोटोग्राफ है. 30 से 40 फीट वाले ऊपर बड़े पेड़ वो स्लैब के ऊपर. मैं 2 दफा वापस आ गया कि अरे मैं गलती से कहाँ बाहर तो नहीं गया बिल्डिंग के, फर्स्ट माले के ऊपर आके मुझे जंगल कैसे दिख रहा है. एक 5 मिनट में शायद रुकता तो मैं वहाँ शेर और ये देखना चालू करता कि कहाँ से ऊपर, मैं जंगल में तो नहीं आ गया हूँ. ये लीकेजेस दिस आर वेरी कॉमन. ये तो अपना अपना पिक्चर लगता है. अरे शायद मेरे भी साइड पे ऐसे ही होता है, थोड़ा चलता है. दिस इज वेरी कॉमन. गो टू एनी साइड इन इंडिया, दिस इज ए वेरी कॉमन पिक्चर. इतना 50 mm का इधर इधर कॉलम, अरे वो तो हो जाता है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छा होता है कि हम सिविल इंजीनियर्स, वी आर नॉट डॉक्टर्स. अगर हम डॉक्टर बन जाते तो 50 mm अगर इधर लग जाता तो मेरा अगर पाँव का कुछ ऑपरेशन कर रहा हूँ तो शायद इधर से मैं 50 mm ऐसे लगा दूंगा गुट्टी मार के और बोलूँगा अरे ठीक है चल जाता है, गुट्टी तो कुछ नहीं है. इधर का थोड़ा एक 5 mm आपका इधर पिपिल मैंने थोड़ा सा शिफ्ट करके लगा दिया, अरे उतना चल जाता है. सिविल में तो हम बोलते कि 1 फीट में 12 इंच हमारा इधर उधर हो जाता है. दिस इज ए केस, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन डिटेल. ये होने के बाद आई स्टॉप गिविंग माई स्टेबिलिटी सर्टिफिकेशन. In one of the case, the history with short of time I am not explaining, but in that building we noticed 3 foundations missing. ऐसा डरे ऐसे कैसे हो सकता है, फाउंडेशन तुम कैसे मिस कर सकते हो? फिर एक टिपिकल आंसर आता है, मैंने नहीं मिस किया, वो पहला वाला प्रोजेक्ट मैनेजर था ना, उसने मिस किया है. एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई हैव स्टार्टेड ओपनिंग फाउंडेशन. मैं सैम्पल फाउंडेशन हर एक में अभी मैं ओपन करता हूँ और जैसे जैसे ओपन करते जा रहा वैसे वैसे एक एक नए नए मेरे सामने पिक्चर्स आ रहे हैं. और उसमें से एक प्रोजेक्ट में कैन यू सी, ये ग्राउंड बीम है, उसके नीचे ये कंक्रीट ही नहीं है, मिसिंग कंक्रीट है. क्या सर्टिफिकेट देंगे? ये खोद के देखा है मैंने इसलिए मुझे पता चला. अगर ये खोद के मैं नहीं देखता तो लिख के देना है 5 साल बिल्डिंग खड़ी रहेगी, इम्पॉसिबल. इतने कॉलम सेंटर शिफ्ट्स 9-9 इंच, वेरी कॉमन. लोगों को लगता है कि मैं एग्जैगरेट कर रहा हूं. इतने हंड्रेड्स में मेरे पास फोटोग्राफ्स एंड प्रोजेक्ट्स है वेयर वी आर डन दिस ऑडिट, हंड्रेड्स. और ये देखने के बाद भी वो प्रोजेक्ट इंजीनियर ऐसा ऐसे करके देख रहा था, हाँ थोड़ा सा लग रहा है क्या, अरे मतलब थोड़ा ऐसा ऐसा करना है. बाहर जाके देखो तो भी पता चलेगा 9 इंच तुम्हारा शिफ्ट है कॉलम. इतना इनएक्सेसिबल एरिया है, उसके ऊपर मुझे पता भी नहीं है स्लैब में क्या है.
विजिबिलिटी इशू है, और फिर मुझे लिख के देना है कि उसके ऊपर की स्लैब सेफ है। अरे स्लैब है भी नहीं, मुझे पता नहीं है, उसको क्या मुझे लिख के देना है स्लैब सेफ है? ओके, सो this is something about, I think I already exhausted time. Shall I stop? 5-10 minutes. Okay. Now some of the facts and myths about NDT. Again always जब आप NDT करोगे तो आपके सामने डॉक्टर जैसे दो रिपोर्ट आएंगे। एक बोल रहा है कि आपका 40-60% आपका वेन पूरा ब्लॉक है, दूसरा वाला बोलता है अरे कुछ नहीं ब्लॉक, भागो तुम, कुछ नहीं होने वाला है तुमको। फिर किसी को जाके तुम पूछते हो तो वो बोलता है अरे नहीं नहीं आपको बेड रेस्ट लेना है, दूसरा बोलता है बेड रेस्ट, कुछ नहीं हुआ है आपको। ऑलवेज कंफ्यूजन। सो दिस इज ए फैक्ट कि आप जब एनडीटी करने के लिए जाएंगे तो आपके सामने दो अलग अलग रिपोर्ट आएंगे, दो भी नहीं, 3, 4, 5 जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उतने आते हैं। एक बोलता है कि पूरा आपका एम 20 है, वो 10-12 दिखा रहा है, तो दूसरा बोलता है 20 का 20.3 है, और चौथा बोलता है अरे 20 क्या, वो तो मुझे 30-35 दिखा रहा है। एंड दिस इज द रियलिटी कि ये ऐसे वेरिएशन वाले आपके सामने रिपोर्ट आते हैं, एंड देन वी स्टार्ट डाउटिंग कि अरे एनडीटी रियल है क्या, एनडीटी रिलायबिलिटी है क्या एनडीटी में। एंड दिस इज व्हाट आई सी दैट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल हैव दिस इन माइंड कि एनडीटी की रिलायबिलिटी क्या है। एनडीटी की रिलायबिलिटी क्या है? इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बेसिकली व्हेन वी स्टार्ट ऑफ टॉकिंग ऑफ एनडीटी रिलायबिलिटी, नॉर्मली आई आस्क ऑल द पीपल कि फिर कंक्रीट में आप कौन सा भी कंस्ट्रक्शन का टेंडर ओपन करके देखिए, व्हाट इज द अल्टीमेट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एज पर एनी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट? 28 days क्यूब स्ट्रेंथ, करेक्ट? सो वी ऑल स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स ब्लाइंडली बिलीव कि 28 days क्यूब स्ट्रेंथ का जो रिपोर्ट जो बताया जाता है वो भेजा भी नहीं जाता है किसी कंसल्टेंट को, वो बोलता है हाँ सब पास है, बस दैट इज ओनली 1 line सेंटेंस जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को इंटीमेट किया जाता है, हाँ सब पास है। वो जो क्यूब है वो क्यूब की रियलिटी एंड क्यूब का कंक्रीट साइड के कंक्रीट को रिप्रेजेंट ट्रूली करता है क्या? देयर इज ए बिग टेक्निकल say intricacy in that, and there are about 11 factors which really decide that how cube is correlated with the site concrete. I am not going in detail. That lecture I take only for 4 hours of only interpretation of cube results and site concrete. Only interpretation of cube with site. It's that complicated. It's that complicated. Concrete सब लोगों को लगता है अरे क्या है आसान, सीमेंट में रेती गिट्टी डालो, पानी डालो, घर्र करके सांभर बनाओ, डाल दो, हो गया कंक्रीट। बनाने में सबसे आसान लगता है, बट टू इंटरप्रेट, अंडरस्टैंड एंड डिजाइन इट्स टेरिबली कॉम्प्लेक्स, इट्स टेरिबली कॉम्प्लेक्स। एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट जब हम एनडीटी करते हैं तो सबको क्या चाहिए? ओनली कंक्रीट की स्ट्रेंथ, एंड दैट टू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, एज इफ कंक्रीट डजंट हैव एनी अदर प्रॉपर्टी। सबको एक ही चाहिए, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। सो व्हाट रियली इज द रिलायबिलिटी? एक्यूरेसी अगर हम बोल रहे हैं तो 75 to 90%, 90% आई एम सेइंग वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। इवन 75% इज ऑल्सो चैलेंजिंग टू गेट ए एक्यूरेसी इन एनडीटी। तो फिर लोग बोलते हैं अरे इसका मतलब है M25 के कंक्रीट को आप उसको M20 भी बोलने वाले हो, आप उसको M30 भी बोलने वाले हैं। मैं बोलता हूँ हाँ। फिर लोग बोलते हैं अरे फिर तो एनडीटी बकवास है। फिर अभी जो एक स्लाइड में खाली उसमें पॉइंट लिस्ट आउट कर रहा हूँ, 11 पॉइंट्स है, वो मैं उनको दिखाता हूँ क्यूब के। मैं बोलता हूँ फिर आप बिलीव क्या कर रहे हो? क्यूब को बिलीव कर रहे हो ना? तो क्यूब की रिलायबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ, और उनको मैं बोलता हूँ कि ये स्लाइड जब मैं पूरी करूँगा हर एक पॉइंट का मैं आपको प्लस माइनस परसेंटेज दिखाने वाला हूँ, और उसको आप काउंट करते जाओ। और वो स्लाइड दिखाने के बाद अगर आपको लगता है कि एनडीटी बकवास है, देन आई वोंट परफॉर्म। एंड फॉर लास्ट 37 years आई एम शोइंग दैट स्लाइड, और वो स्लाइड दिखाने के बाद एक भी अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि उसने बोला है कि हाँ आपको एनडीटी नहीं करना है।
क्यूब की जो रिलायबिलिटी है दैट इज ए ट्रिमेंडस, उसमें क्वेश्चन मार्क्स है, लॉट्स ऑफ टेक्निकलिटीज है. एंड रिमेंबर दैट वी आर डीलिंग विद ए मोस्ट complex material, concrete, which has got a terrible heterogeneity. Unfortunately, all other engineering branches, they deal with homogeneous materials like steel, metals and plastics. आप यहाँ स्टील चेक कर लो और वहाँ चेक कर लो 1 to 2% प्लस माइनस. आप कंक्रीट यहाँ चेक कर लो और 2 इंच अपार्ट यू टेस्ट द कंक्रीट, यू विल हैव ए वेरिएशन ऑफ 25% to 75 वेरिएशन 2 इंच अपार्ट. दिस इज द मटेरियल, दैट इज द फैक्ट एंड दैट वी शुड एक्सेप्ट. लेकिन वो हम मानते नहीं हैं. हम बोलते हैं अरे ऐसे थोड़ा ही होता है, इतना थोड़ा ही वेरिएशन आता है. ये क्यों कॉन्फिडेंस हमको ऐसा आ गया? क्योंकि आपके सामने जो क्यूब के रिजल्ट्स अभी तक जो आ रहे हैं उसके ऊपर आप डिपेंडेंट है, जिसमें सांबार कंक्रीट के क्यूब है ही नहीं, जिसका सुबह भरा गया हुआ जो फेक बैच है उसका क्यूब है. उसमें जो कुछ टेस्टिंग के जो पॉइंट्स है, इसमें खाली ये 11 पैरामीटर्स है. सिंपली आई एम स्किपिंग. ये हर एक पैरामीटर अगर आप काउंट करते जाएंगे, हर एक की डिटेल थ्योरी में आप अगर जाएंगे, ये एक स्लाइड में 2 घंटे में एक्सप्लेन करता हूँ. एक एक का अगर मैं आपको बताते जाऊंगा तो 3-4 पॉइंट होने के बाद लोग मुझे बोलते हैं बस बस अरे बहुत हो गया, एनडीटी करेक्ट है, आप एनडीटी चालू कर दो, अभी हमको क्यूब का बाकी सुनना ही नहीं है. उसमें से 1-2 पॉइंट मैं खाली आपको परसेंटेज में बता देता हूं कि क्या रियली होता है. इसमें जो है मॉइस्चर कंडीशन, क्यूब्स आर सपोज टू बी टेस्टेड इन सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन. पानी से निकालना है, टेबल के ऊपर रखना है, कपड़े से पोंछना है एंड इट शुड बी टेस्टेड सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन. गो टू एनी लैब एंड जस्ट चेक, go to any site and just check at how many site you test the concrete cubes in necessary condition. आपको आज सुबह टेस्ट करने हैं तो शाम को अगले एक दिन पहले निकाले जाते हैं पानी से. आपको दोपहर में 4 बजे क्यूब टेस्ट करना है तो सुबह 11 बजे पानी से निकाले जाते हैं. दिस इज ए 90% कॉमन प्रैक्टिस इन एवरी साइट. इफ यू डू दिस then you will get 10 to 15% हायर स्ट्रेंथ. और जिनको मालूम रहता है, जो कॉन्ट्रैक्टर को जो होशियार रहता है, वो उसको बाहर रखेगा, 3 दिन धूप में सुखाएगा और फिर टेस्ट करेगा. देन यू गेट 15 to 25% प्लस स्ट्रेंथ. जो और होशियार कॉन्ट्रैक्टर है, जिसको ये सब इंट्रिकेसी मालूम है, वो उसको बाहर निकालेगा, 1 दिन ओवन में रखेगा 100 डिग्रीज पे, फिर उसको बाहर 2 दिन सुखाएगा एंड देन ही विल क्रश. किसी को पता नहीं चलता है क्योंकि क्यूब टेस्टिंग के समय कोई भी इंजीनियर खड़ा नहीं रहता है. सुपरवाइजर मुकादम लेवल के हाथ में सौंपा जाता है, क्यूब टेस्टिंग कर लो. स्ट्रक्चरल इंजीनियर, हम तो साइट के ऊपर रहते नहीं, तो सवाल ही नहीं हमको ये कुछ इंट्रिकेसीज मालूम होने का. अगर ये तीसरा जो कंडीशन मैं बोल रहा हूँ, ओवन में डाल के बाहर निकाल के 2 दिन सुखाओ उसको और टेस्ट करो, देन यू गेट 25 to 35% हायर स्ट्रेंथ. खत्म हो गया. जो हम बात कर रहे हैं वहां एनडीटी की प्लस माइनस 15 to 20%, ये एक फैक्टर ये आपका 20 से 35% प्लस माइनस कर रहा है. अनदर फैक्टर इज रेट ऑफ लोडिंग. एज पर IS 516, द रेट ऑफ लोडिंग क्यूब टेस्टिंग, it specifies that it should be 140 kg per centimeter square per minute. That means approximately for cube say 315 kilonewton per minute. अगर आपका M40 ग्रेड का कंक्रीट है तो इंटू 225, सो अप्रोक्सीमेटली लोड जो आपको क्यूब क्रश होना है प्लस 0.825 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन. सो फॉर 40 यू शुड गेट ए स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट से 45-46. सो लोड कितना आएगा? 900 kg to 1000 kg क्रशिंग लोड. हाउ मच टाइम आई शुड रिक्वायर टू क्रश दैट क्यूब? 3 मिनट्स. एक क्यूब क्रश करने के लिए आपको 3 मिनट तक स्टडीली लोड देना है. शो मी एनी साइट जहां पे ये ऐसे रेट ऑफ लोडिंग से टेस्ट होता है. कितने में क्यूब क्रश होते हैं? 15 seconds to 30 seconds. That is a typical speed which has been observed in India.
and we have done lot of research on that, and we are with the help of one college, हमने एक 40 लेबोरेटरीज में ये एक 10 साल पहले एक प्रोजेक्ट किया था. उसमें साइट वाली लेबोरेटरीज, गवर्नमेंट कॉलेजेस की लेबोरेटरीज, प्राइवेट लेबोरेटरीज, ये 40 आइडेंटिफाई की थी और उनको बोला था कि ये जाके आपको वॉच करना है कितने लैब्स में होता है. 1 एक लैब में खाली ये रेट ऑफ लोडिंग पता था, एंड रेस्ट आउट 39 साइट वाली जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके साइट के ऊपर मशीन्स रहते हैं, इवन उसमें से वो 10 ऐसी कंपनी थी जिनके साइट के ऊपर के लैब के ऊपर जाके हमने यह डाटा कलेक्ट किया था. और वो डाटा कलेक्ट करते समय हमने उनको बोला था कि ये बोलना नहीं आप ये टेस्ट करने वाले हो, क्योंकि फिर वो जाग जाएगा. आप उसको बोल दो कि हमको कंक्रीट फेल्योर स्टडी करना है. और एक बंदे को बोला था स्टॉप वॉच लगा के आपको चेक करना है कितने सेकंड्स में क्यूब क्रश होता है. द रिक्वायर्ड इज 140. आउट ऑफ 40 ओनली 1 लैब वॉज फॉलोइंग. आउट ऑफ 39 लैब द लोएस्ट फिगर वॉज 500 and highest figure was 1400, 10 times the rate of loading as per 516. और उसमें से 800 के ऊपर 75% of the labs site field जो है they were having the rate of loading more than 750. That means minimum 5 to 6 times. So with this data, then we casted the different concrete cubes in our laboratory and varied the speed. And then we found कि अगर ऐसा speed से testing होता है तो strength क्या आती है. Then we found जो 750 के ऊपर जो वाला loading है जो 75% इंडिया में है, with that you get the higher strength of about 25 to 35% higher fall strength. और अगर 1000 के ऊपर है then you get 40 to 45% false high strength simply because of wrong rate of loading. दोनों मिला के 75% हो गया है. स्टिल हम बोलेंगे क्यूब रियल है. कितने क्यूब्स इंडिया में सही टेस्ट होते ही नहीं है. एंड वी बिलीव ब्लाइंडली, ऐसे हम चलते हैं क्यूब स्ट्रेंथ अरे बराबर है, क्यूब स्ट्रेंथ आ गया, स्ट्रक्चर इज करेक्ट. सो वेयर थिंग्स गो रॉन्ग, आई विल टेक 2 minutes एंड देन आई विल स्टॉप. ये एनडीटी में कहाँ पे मिस्टेक हो रही है. फर्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग ए प्रोजेक्ट वी मस्ट सिट टुगेदर ऑल द कंसर्न पार्टीज एंड वी शुड एग्री क्या करना है, क्यों करना है, एनडीटी क्यों करना है, प्रॉब्लम कहाँ है, उसका रूट कॉज एनालिसिस क्या है, कौन सी टेस्ट करनी है, लोकेशंस कहाँ पे लेने, कितने जगह पे उसको कंडक्ट करना है, और उससे जो रिजल्ट आएगा वो क्या है और उसको हम कैसे उसको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया करने वाले. एवरीथिंग हैज टू बी रिटन डाउन फर्स्ट, एग्रीड अपॉन, एंड देन एनडीटी शुड बी परफॉर्म. ये कभी नहीं होता है. आपका प्रोजेक्ट है जिसमें करीबन से 50,000 स्क्वायर फीट का 100 कॉलम के हिसाब से आप निकालो तो 500 कॉलम उसमें आएंगे, और एनडीटी के लिए बोला जाता है कि उसमें से 5 कॉलम टेस्ट कर लो. क्या मिलेगा आपको हाथ में? 500 कॉलम में से आप 5 कॉलम टेस्ट कर रहे हो, हाथ में क्या आएगा? नथिंग. डोंट डू एनी टेस्टिंग. सैंपल हैज टू बी सफिशिएंट. लोकेशन कहाँ पे लेना है. अगर कंक्रीट में आपको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन चाहिए, देन स्पेसिफाई इन योर एग्रीमेंट और टेंडर डॉक्यूमेंट दैट द टेस्ट शुड बी परफॉर्म इन कॉम्प्रेशन जोन. अरे कॉम्प्रेशन जोन ही मालूम नहीं रहता है वो एनडीटी वालों को कि बेंडिंग कहाँ है, टेंशन कहाँ है, कॉम्प्रेशन कहाँ है. लगा दिया हाथ में, मशीन लगा दिया एक, उसका रिजल्ट आ गया, ठोक दिया उसका रिजल्ट सामने. टेंशन जोन में क्यों आप परफॉर्म करने वाले हो? अगर निगलेक्ट कर रहे हैं ना कंक्रीट, देन व्हाई आर परफॉर्मिंग टेस्ट इन टेंशन जोन. पता ही नहीं है टेंशन जोन में किया या कॉम्प्रेशन जोन में, वो भी पता नहीं है. कहाँ पे कितने सारे टेस्ट करने हैं, नो आइडिया. कॉलम में जब हमारा रिजल्ट आता है, अगेन वी हैव ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख मेंबर्स ऑफ कॉलम्स वी आर टेस्टेड विद अल्ट्रासोनिक, एंड स्टैटिस्टिक्स उसका जो डाटा है, टॉप और बॉटम में अगर आप अल्ट्रासोनिक लो तो बॉटम और टॉप में अल्ट्रासोनिक में डिफरेंस इज अबाउट 15 to 25%. टॉप के रीडिंग्स माइनस,
सो इसका खुला मतलब है कि आपके ऊपर के कॉलम में कंक्रीट में स्ट्रेंथ कम है, क्यूब में रिफ्लेक्ट होती है, कुछ सवाल नहीं है, क्यूब उसका लेना देना ही नहीं है कहाँ पे भरा है, वो तो नीचे कहाँ पे भर देते हैं, वो कॉलम में भी गया है, बीम में गया है, स्लैब में गया है, पता भी नहीं है क्यूब कहाँ भरा है। उसमें कॉम्पैक्शन लॉट ऑफ डिफरेंस। थियोरेटिकली द पोरिंग हाइट हैज टू बी 1.5, लेकिन इंडिया में कहाँ 1.5 पे पोरिंग होता है। 8 फीट माई शटरिंग प्लाईवुड की हाइट है तो 8 फीट से ड्रॉप करते हैं, तो 8 फीट से ड्रॉप करेंगे, सेग्रीगेशन नीचे एग्रीगेट ऊपर मॉर्टर, उसका आप कोर निकाल के देखो, अल्ट्रासोनिक निकाल के देखो, वी आर लैक्स ऑफ डाटा विद अस कि ऊपर में 20% लेस स्ट्रेंथ। तो फिर क्या हम आपके कुछ आके बोलेंगे तुम आओगे तो ऊपर नहीं लगाना है कॉलम के, नीचे पे लगाना है, मेरी स्ट्रेंथ खाली वहां रहती है, ऊपर हमारी सब 20% 25% कम रहती है। रिमेंबर एनडीटी इज ओनली नॉट द ओनली डायग्नोस्टिक टूल, structural audit is equally important. It has to be carried out along with structural audit. Again, NDT results are not the final, but remember same way your cube results are also not final. अगर ये मान के चलेंगे तो फिर NDT को आप रिस्पेक्ट दोगे। Then none of the NDTs other than core, it gives you directly in situ compressive strength. To be frank, if you ask me, अगर कोई मुझे बोलता है कि इन सीटू इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकाल सकते हैं क्या, इज देयर एनी मेथड? विथ माई 37 years of experience, my answer is no. No one in the world can find out the true intrinsic characteristic strength of site concrete. Cannot be. मैथमेटिकल जो हम assumption करके जा रहे हैं, that's all. Beyond that, you cannot go to that accuracy level. Most important, कई दफ़ा लोग पूछते हैं कि अरे सरफेस फिनिश से हम डिक्टेट करते हैं, अरे एकदम बेस्ट है सरफेस फिनिश है, बेस्ट कंक्रीट। जितना फिनिश ज़्यादा उतना मुझे डर रहता है कि सांभर कंक्रीट ज़्यादा है, रेती ज़्यादा है, उसी की वजह से वो मिरर फिनिश है। और थोड़ा हनीकॉम्बिंग दिख लिया तो बोलते हैं अरे बेकार कॉन्ट्रैक्टर, वो हनीकॉम्बिंग है। हनीकॉम्बिंग है तो प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि उसका माल स्टिफ है। सो सरफेस हनीकॉम्बिंग है तो प्रूव कर लो अल्ट्रासोनिक से कि अगर वो सरफेस हनीकॉम्बिंग है, जस्ट फॉरगेट, नेग्लेक्ट इट, कुछ मत करो। अल्ट्रासोनिक अगर वैल्यू आपको सफिशिएंट दे रही है, दैट मीन्स इट्स ओनली सरफेस एंड प्रोबेबली दैट इज बिकॉज ऑफ ए हायर वाटर सीमेंट, लोअर वाटर सीमेंट रेशियो, स्टिफ कॉन्क्रीट, एक्सेप्ट इट, इनफैक्ट दैट इज बेटर कॉन्क्रीट। कई दफ़ा ये मिस आउट होता है कि करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम ही पता नहीं है। मशीन फाउंडेशन टेस्ट करना है 7-8 मीटर का और उसके ऊपर बोलते हैं हैमर लगाओ। रिबाउंड हैमर इज ओनली ए सरफेस हार्डनेस टेस्ट, इट इज ओनली ए स्टेथोस्कोप, इट कैन डिटेक्ट ओनली अप टू 25 to 40 mm। उसके पीछे रिबाउंड हैमर को कुछ नहीं समझता है, उसके पीछे इतना बड़ा होल है तो भी रिबाउंड हैमर को नहीं समझता है। आई डोंट नो वेदर आई हैव गॉट दैट फोटोग्राफ। डिपेंडेंसी ओनली ऑन रिबाउंड हैमर, कहाँ पे चीजें गलत होती है। वी बिलीव कि रिबाउंड हैमर सही है, नो इट इज स्टेथोस्कोप। विद स्टेथोस्कोप डोंट ट्राई टू से दैट कि पेशेंट को कैंसर है या उसको हार्ट को प्रॉब्लम है। स्टेथोस्कोप इज स्टेथोस्कोप, पेशेंट को टेम्पररी इमीडिएटली देखना है टू दैट लेवल, दैट इज ऑल, नथिंग मोर देन दैट। Conducting carbonation test, rebound hammer is largely affected by carbonation. अगर आप रिबाउंड हैमर टेस्ट ले रहे हो और आप कार्बोनेशन टेस्ट परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो तो फिर रिबाउंड हैमर बकवास है। इट हैज टू बी, देयर हैज टू बी ए कार्बोनेशन टेस्ट पैरेलली डन विद रिबाउंड हैमर, होता ही नहीं है खाली रिबाउंड हैमर। फिर कार्बोनेशन के हिसाब से आपको डबल रीडिंग आएगी एंड देन यू विल प्रेडिक्ट द स्ट्रेंथ डबल। एंड फिर गुडी गुडी, अरे बेस्ट कंक्रीट, बेस्ट कंक्रीट। कार्बोनेशन इफेक्ट टोटली मिस्ड आउट। नॉट कंडक्टिंग द कोर टेस्ट, एक्चुअली थ्योरेटिकली कैसे एनडीटी में होना है, आपको फर्स्ट रिबाउंड हैमर लेना है, उसी जगह पे आपको अल्ट्रासोनिक लेना है और ये समझो आपने 100 मेंबर पे लिया तो उसमें से 10% लोकेशंस यू सिलेक्ट फॉर कोर टेस्ट। Core has to be performed in NDT.
कई लोगों को ऐसा लगता है नहीं नहीं आप पहले खाली अल्ट्रासोनिक रिबाउंड कर लो, कोर नहीं करना है, हमको डिस्टर्ब नहीं करना है. नहीं होगा. कोर टेस्ट हैज टू बी डन, क्योंकि उसका जो कोरिलेशन है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड एटलीस्ट 10% लोकेशंस वी मस्ट हैव द कोर टेस्ट. और वो कोर भी कहाँ निकालना है? एग्जैक्टली एट सेम पॉइंट. अभी क्या होता है, रिबाउंड हैमर यहाँ लिया, अल्ट्रासोनिक वहाँ लिया और कोर यहाँ निकाला. अरे उसका कोरिलेशन ही नहीं है. हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक मेंबर में टॉप से बॉटम तक सेम स्ट्रेंथ है. नहीं होती है. कितना वेरिएशन होता है? 25% टू 75% एक मेंबर में. पीपल डोंट बिलीव, बट दैट इज द स्टैटिस्टिक्स व्हाट वी हैव, and that is the not small figure. It's in thousands. It has to be conducted at that level. There is a one big factor that I will explain and I will stop. जब आप साइट के ऊपर क्यूब आप जब टेस्ट कर रहे हो, so cube is always in unstressed condition. लेकिन साइट के ऊपर जब आप अल्ट्रासोनिक रिबाउंड हैमर ले रहे हो, then concrete in member is in stress condition. The moment you take out the sample, जब आप कोर निकाल रहे हो, देन स्ट्रेस इज रिलीव्ड. और वो जब स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, तब जो कंक्रीट का जो अल्ट्रासोनिक रिबाउंड हैमर आता है दैट इज टोटली डिफरेंट. आपको स्ट्रेस फैक्टर हर एक के ऊपर आपको एस्टेब्लिश करना है कि कंक्रीट में स्ट्रेस कितना है. यू अप्लाई ए स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर, एंड दैट स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर इज ऑफ द ट्यून ऑफ अबाउट 15% to 50%. Stress matters, and 95% of the NDT cases done in India, stress is not at all calculated. वो निकाला ही नहीं जाता है, उसका for correction लगाया नहीं जाता है. People are not aware there is a stress factor. Concrete always is in stress condition. दूसरा, आपका क्यूब जो टेस्ट कर रहे हैं वो SSD कंडीशन में है, साइट का concrete is in dry condition. But the characteristic strength definition of IS 456, it says that it has to be SSD. मतलब हम जो स्ट्रक्चरल डिजाइन में जो वैल्यू ले रहे हैं दैट इज SSD कंडीशन कंक्रीट स्ट्रेंथ. आप NDT से जो प्रेडिक्ट कर रहे हो, कितने रिपोर्ट में आपको पता चलता है कि ये जो स्ट्रेंथ प्रेडिक्टेड है ये ड्राई कंक्रीट की है या सैचुरेटेड सरफेस की है? साइड के ऊपर तो कंक्रीट आपका ड्राई है, सो यू प्रेडिक्ट ड्राई. आपको चाहिए स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को SSD. Okay, so lots of myths. So with that I stop. Thanks, coordinator, for calling me over here. If you have few questions, if time permits, maybe I can answer. Okay, thank you. Thank you, sir. We thoroughly enjoyed your remarkable lecture, which I'm sure would benefit our audience in their upcoming projects. With this, we come to an end of the first session of the ISSC Foundation Day. The next session will commence at 2.